کیا بات ہے، بڑا ہونے کی دلیل کیا ہندو سنتے ہیں۔ عبد الواحد قریشی نے بھی اس معاملے کو کیش کرانے کی کوشش کی اور بہتی گنگا میں ہاتھ دھو کر اپنا یوٹیوب چینل خوب چلوایا۔ انہوں نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو لاعلم شخص قرار دیا اور کہا کہ ان کے بتائے ہوئے مسئلے کے بالکل الٹ کریں تو سمجھ جائیں کہ آپ نے صحیح کام کیا۔ ان کے فتوے، مسئلے اور باتیں غلط ہوتی ہیں۔ عبد الواحد قریشی نے دعوے تو بہت کیے مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو کبھی فتویٰ دیا ہی نہیں اور نہ ہی پر اعتراض ہے، لیکن اگر اسی جگہ کوئی فلم سٹار، کوئی کھلاڑی، کوئی گانے والی آتی تو یا کوئی بالی ووڈ کا ہیرو یا کرکٹ سے کوئی سٹار آ رہا ہوتا تو پاکستان کے عوام پوسٹر بنواتی، خوشیاں مناتی، ویلکم کے لیے بہت کچھ کرتے۔ ایک مفکر، مقرر اور عالم دین کی تشریف آوری پر اعتراض آخر کیوں؟ اور اس ہیلو فرینڈز، ایک نئی ویڈیو میں ویلکم ہے۔ آج کی ویڈیو پہ ہم ریئیکشن لیں گے ایک نئی ویڈیو پہ۔ آج کی ویڈیو ہے ذاکر نائک کے بارے میں۔ تو آج کی ویڈیو ہے ذاکر نائک سویٹ ہوم میں اسٹیج چھوڑ کر کیوں چلے گئے۔ تو آج کی جو پاکستان ذاکر نائک اس سمے پاکستان میں وہ ایک فنکشن میں گئے تھے، جو بچے کے سویٹ ہوم کے اسٹیج پر گئے تھے، انہوں نے تقریر دیا۔ اس کے بعد وہ بچی کو ہے ایوارڈ دینا تھا، اس کے بعد وہ چھوڑ کر اسٹیج سے چلے گئے۔ اسی کے بارے میں ویڈیو ہے کہ وہ کیوں چلے گئے۔ لوگ نے الگ الگ باتیں بنائی کہ اس وجہ چلے گئے، اس لیے کچھ لوگوں نے کہا صحیح نہیں کیا، یہ غلط کیا۔ تو آج کی ویڈیو ہے اسی پہ کیوں چھوڑا اور کیا ریئل اسٹوری ہے ذاکر نائک کے سویٹ ہوم پہ اسٹیج چھوڑ کر کیوں چلے گئے۔ چلیے ویڈیو کو دیکھتے ہو، آپ کو جائے گا۔ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو، بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور بہت نالج ویڈیو ہے۔ تو آج کی ویڈیو ہے ریئل اسٹوری کے بارے میں کہ کیوں ذاکر نائک سویٹ ہوم کے اسٹیج پہ چھوڑ گئے تب ایوارڈ دینے۔ تو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، پیج کو فالو کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، جانتے ہیں ذاکر نائک نے سویٹ ہوم کے اسٹیج کو کیوں چھوڑ کے چلے گئے۔ آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے۔ مسئلے بالکل غلط بتاتے ہیں، فتوے ان کے غلط ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تو بات ساتھی کہتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے، بڑا ہونے کی دلیل کیا ہندو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں پاکستان کے دورے پر آئے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک سٹیج پر دکھایا جاتا ہے جس میں اچانک وہ سٹیج سے اتر کر چلے جاتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک یتیم خانہ جس کا نام سویٹ ہوم ہے اس کا دورہ کیا اور وہاں بچیوں سے ملاقات کی، مگر ان کے سر پر حجاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں سے چلے گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ بچیاں نامحرم ہیں، میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ مگر کیا واقعی حقیقت میں ایسا ہوا تھا یا معاملہ کچھ اور ہے؟ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں اس کی تفصیل سے آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ اصل میں یہاں کیا ہوا تھا اور کیوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسٹیج کو چھوڑا۔ اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو ایک مرتبہ دیکھ لیجیے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد کی خبر سنتے ہی پاکستان میں کئی مذہبی شخصیات نے ان پر تنقید شروع کر دی ہے۔ ان میں شیعہ، بریلوی اور اہل حدیث سے بھی تعلق رکھنے والے کچھ لوگ شامل ہیں۔ مگر یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے جس کے بارے میں آگے چل کر بات کریں گے۔ مگر پہلے آپ کو اس ویڈیو کی حقیقت بتاتے ہیں جو ہم نے آپ کو شروع میں بتائی۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یتیم بچیوں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، ان کو شیلڈ نہیں دی اور اسٹیج سے چلے گئے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بچیاں نامحرم ہیں، میں ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے ان کے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتا۔ مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان بچیوں کے ساتھ نہ صرف وقت گزارا، ان پر شفقت دکھائی اور پھر ان کو اپنی زندگی کی پوری کہانی بتائی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سویٹ ہوم میں ان بچوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا اور یہ بات ہم بغیر ثبوت کے نہیں کر رہے، آپ خود ہی یہ ویڈیو دیکھ لیجیے۔ قرآن مجید میں معنی سے پڑھنے لگا تو پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پیشہ ہے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ Who is better in speech؟ کون تقریر میں بہتر ہے؟ Who is better in speech than one who invites to the way of the Lord؟ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ ایک طرف
वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाहि व अमिला सालिहान क़ाल इन्नी मुस्लिम, और अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो कुरान मजीद के मुताबिक आज के माशरे में सबसे बड़ा पेशा कौन? डॉक्टर, इंजीनियर। और मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और आप कुरान मजीद नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल क्या थे? डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, क्या थे? अल्लाह के रसूल थे। उनका काम था कि दावत पहुंचाना। तो सबसे बेहतरीन पेशा, हमने एक स्कूल कायम थी, बम्बई में कायम की थी, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स, यानी तालीम दोनों जहां के लिए, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए। नाज़रीन, ये वीडियो इस चीज का मुंह बोलता सबूत है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में किया जाने वाला प्रोपेगेंडा बिल्कुल बेबुनियाद है। इनके स्वीट होम से जाने की खबरों में न कोई सदाकत है और न ही इसका सरपैर। जहां तक इस वीडियो की हकीकत है तो इसमें इंतजामिया की नाअहली शामिल थी। स्वीट होम की इंतजामिया ने डॉक्टर जाकिर नाइक को मेहमान के तौर पर बुलाया था और उन्हें यहाँ पर लेक्चर देना था। शील्ड तकसीम करने का काम उनका नहीं था, न ही उन्हें यहाँ बुलाते हुए ये कहा गया कि आपने बच्चियों को शील्ड देनी है। इस काम के लिए पाकिस्तान स्वीट होम के चेयरमैन जमुर्द खान को मुंतखब किया गया था, जो वहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ मौजूद थे। उन्होंने ही शील्ड उठा रखी थी जो बच्चियों को देना थी। डॉक्टर जाकिर नाइक का वक्त लेक्चर देने के बाद खत्म हो चुका। उन्हें अब स्टेज से जाना ही था, मगर जैसे कि अक्सर तकरीबात में होता है कि एक शख्स को मेहमान के साथ ही रखा जाता है ताकि वो उन्हें अपने साथ साथ लेकर हर जगह चले। इस तकरीब में यह काम किसी के सुपुर्द नहीं किया गया था, इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक लेक्चर के बाद जब खड़े हुए तो बद इंतजामी के बायस उनको बताया ही नहीं गया कि आगे उन्हें क्या करना है और बच्चियों को स्टेज पर बुला लिया। छोटे स्टेज पर जब रश ज्यादा हुआ तो डॉक्टर जाकिर नाइक खुद ही स्टेज से उतर गए ताकि दूसरे लोगों के लिए जगह बन जाए, मगर वहाँ मौजूद किसी शैतानी दिमाग के शख्स ने उसको भी तनाजा बनाकर पेश किया और डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम बदनाम करने की साजिश की। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि बहुत से लोग डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान आमद को पसंद नहीं कर रहे। ऐसे लोगों की बिला जवाज तनकीद पर अफसोस के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। आपने अशरफ जलाली की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में ऐसी घटिया बातें की। मनाजरे का चैलेंज बगैर किसी फजूल गुफ्तगू या इल्जामात के भी दिया जा सकता है, मगर अशरफ जलाली ने ऐसा मुनासिब नहीं समझा और अपने मानने वालों में अपने इल्म की धाक बिठाने की कोशिश की। हम जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक कभी कोई बात बगैर हवाले के नहीं करते। उनकी हर बात में कुरान हदीस का हवाला होता है, तो फिर किस मुंह से उनके मुखालिफिन उन पर ऐसे इल्जामात लगाते हैं। ऐसा करना तो बहतान तराशी के जुमरे में आता है, जिसकी बहुत बड़ी सजा है। और सिर्फ इसी एक मौके पर ही नहीं, बल्कि जैसे ही डॉक्टर साहब के पाकिस्तान आने की खबर आई, डॉक्टर अशरफ जलाली ने उसके फौरी बाद से डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम ले लेकर प्रोपेगेंडा किया। एक और वीडियो क्लिप भी नाज़रीन आप देखिए। आज का एक फितना डॉक्टर जाकिर नाइक की शक्ल में इस उम्मत में मौजूद है। इंग्लिश के चंद जुमलों पर अपना ईमान बेच न देना और देख के कुरान सुनना, कुरान के बारे में सनद और चेहरा दोनों को देखना, ना बेसनते का सुनना और ना ही इस अंदाज का कि जहां हुस्ते शाही हुई हो। नाज़रीन, डॉक्टर अशरफ जलाली इस लिस्ट में अकेले नहीं, मौलाना इलियास घुम्मन भी डॉक्टर जाकिर नाइक पर बड़ी तनकीद करते हैं। उन्होंने डॉक्टर साहब को सरकारी मेहमान के तौर पर बुलाने की मजम्मत की थी और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया था उन्हें पाकिस्तान दाखिले की इजाजत न दी जाए। मौलाना इलियास घुम्मन ने दावा किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक का इल्म कुछ भी नहीं, सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसलिए मेरी नसीहत है कि अंग्रेजी के 2-4 बोल सुनकर इनके पीछे न लग जाना। दीन को समझना है तो दूसरे उलमा के पास जाओ। जाकिर नाइक को सिर्फ हिंदू, सिख और ईसाई ही सुनते रहे तो बेहतर है, कोई मुसलमान उनको न सुने। डॉक्टर जाकिर नाइक तो मुझे बासादी कहते हैं बहुत बड़ा आदमी है। मैंने कहा क्यों? कहता है उसको लाखों लोग सुनते हैं और सिख भी सुनते हैं, हिंदू भी सुनते हैं, सिख भी सुनते हैं, बहुत बड़ा आदमी है। मैंने कहा बहुत बड़ा आदमी होने की दलील क्या है? सिख सुनते हैं, क्या बात है? बड़ा होने की दलील क्या? हिंदू सुनते हैं। अब्दुल वाहिद कुरैशी ने भी इस मामले को कैश कराने की कोशिश की और बहती गंगा में हाथ धोकर अपना यूट्यूब चैनल खूब चलवाया। उन्होंने भी डॉक्टर जाकिर नाइक को लाइल्म शख्स करार दिया और कहा कि उनके बताए हुए मसले के बिल्कुल उलट करें तो समझ जाएं कि आपने सही काम किया। उनके फतवे, मसले और बातें गलत होती हैं। अब्दुल वाहिद कुरैशी ने दावे तो बहुत किए, मगर वो ये नहीं जानते कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो कभी फतवा दिया ही नहीं और न ही किसी मसले को बयान किया है। उनकी सारी बातें तो सिर्फ और सिर्फ इसी पर होती है कि गैर मुस्लिमों को मुसलमान और मुसलमानों को पक्का मुसलमान बनाया जाए। हकीकत से रोशनास कराना अगर डॉक्टर साहब की गलती है तो हमारा मानना है कि उन्हें ये गलती बार बार करनी चाहिए। अब्दुल वाहिद के साथ साथ और बहुत बेशुमार लोग हैं जिन्हें लोग कम जानते हों या ज्यादा, उन्होंने भी डॉक्टर साहब की पाकिस्तान आमद पर बिला वजह तनकीद का बाजार गर्म कर रखा है। लेकिन जब इस्लाम के बारे में वो कोई राय दें तो अहले हक उलमाए कराम से उनके बारे में पूछ लिया करें।
क्योंकि वो मसले बिल्कुल गलत बताते हैं, फतवे उनके गलत हैं, बाज़ जगह तो बिल्कुल नामुनासिब और गुस्ताखी के दर्जे तक बातें मौजूद हैं। हैरत है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के आने पर एतराज़ है, लेकिन अगर इसी जगह कोई फिल्म स्टार, कोई खिलाड़ी, कोई गाने वाली आती तो या कोई बॉलीवुड का हीरो या क्रिकेट से कोई स्टार आ रहा होता तो पाकिस्तान के अवाम पोस्टर बनवाती, खुशियां मनाती, वेलकम के लिए बहुत कुछ करते। एक मुफक्कर, मुकर्रर और आलिम दीन की तशरीफ आवरी पर एतराज़ आखिर क्यों? और इसकी वजह जो हमें समझ आती है वो सिर्फ ये है कि पेशावराना रकाबत के बायस ही इन पर एतराज़ किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक हमेशा यही तलकीन करते हैं कि जो भी कोई इंसान कहे इस पर यकीन न करो, बल्कि कुरान पाक को खोलो और इसमें से पढ़ो वहाँ क्या लिखा है। अगर कुरान पाक में उसके उलट लिखा है जो मैं कह रहा हूँ तो मेरी बात मगर अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में उलमा की ज्यादातर तादाद ऐसी है जो इस चीज को मानने को तैयार नहीं। उनकी राय से अगर किसी को इख्तलाफ हो तो लोग मरने मारने पर तुल जाते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद की मिसाल हमारे सामने है, जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि तीन मरतबा मुआफी मांगी। अवाम शायद माफ कर भी दे, मगर कोई न कोई दीन का ठेकेदार उनकी पहली वीडियो को उठाकर कोई नया बयान जारी कर दिया और अपनी दुकानदारी चमकाना शुरू कर देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक पर एतराज किया जाता है कि उनके पास कोई दलील नहीं होती, मगर इस बात का एतराफ तो खुद डॉक्टर जाकिर नाइक करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास कोई दलील नहीं बल्कि सिर्फ हवाला जात हैं जो कुरान और हदीस में से हैं। भला कुरान और हदीस के बाद किसी अक्ली दलील की बात भी बाकी रह सकती है? जो कुरान पाक और हदीस में लिखा है वो फाइनल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। एक दूसरे के अकायद और राय और ख्यालात को बेरहमी से मुस्तरद करना इंतहाई अफसोसनाक है, और ऊपर से एक मेहमान के साथ ऐसा सलूक तो और भी ज्यादा काबिल मुजम्मत है। मुख्तलिफ अकायद के अफराद सोशल मीडिया पर डॉक्टर जाकिर नाइक के आने पर लड़ रहे हैं। बज़ाहिर ये इख्तलाफ और लड़ाई सादा नजर आती है, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी आमद और इनके नाम को कैश कराने का सिलसिला जारी है, जिसका जितना बस चलता है वो उतना ही इस गंगा में हाथ धोने में मसरूफ नजर आता है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक के दौरे पाकिस्तान नाइक के बारे में जो रियल स्टोरी थी सच्चाई सामने आ गई कि वो जो मतलब स्टेज चले गए, वो उनको बताया नहीं गया था कि शील्ड भी देनी है, तो बस तकरीर करके वो चले गए। मगर लोग अपनी अपनी दुकान चमका रहे हैं कि नहीं तो वो नहीं, कोई ने कहा पाकिस्तान ना जाओ। तो ये सब आज की वीडियो थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो थी। तो स्वीट होम से क्यों स्टेज से चले गए, जो स्वीट होम का स्टेज था, तो और बच्चियों के साथ वो रहे नहीं, उसके मुझे पता लग गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, पेज को फॉलो कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।